Dr. Aditya Parihar, and first of all, I welcome you all in the live class of social group work, and its course code is MSW008. First of all, we start with the methods of social work intervention. We have discussed it in earlier lecture also that there are 6 methods of social work intervention. Out of 6, 3 are the primary methods and other 3 are the secondary methods. The first 3 primary methods are social casework, second is social group work, third is community organization and development, and the secondary methods are: first is social action, second is social welfare administration, and third one is social work research. So today our lecture is based on the method of the primary method, one of the primary method, and that is social group work, or we are saying it also working with groups. So first of all, the definition of social group work. The definition was given by Konopka in 1963. She said social group work is a method of social work which help individuals to enhance their social functioning through purposeful group experiences and to cope more effectively with their personal, group or community problems. So in this definition, जो focus था उनका, that was basically on the individual और उसकी जो social functioning है उसको किस तरह से जो group experiences हैं वो enhance करते हैं, वो इस चीज़ की बात करती हैं. The second definition was given by Coyle in 1954. She said that group work is used within group experiences as a method to individual growth, development, and that the group worker is concerned in developing social responsibilities and active citizenship for the improvement of democratic society. So this is the definition of Coyle, and the year in which she gave this definition was 1954. So talking about this social group work, when we talk about social group work, it is very important first of all to know about what is group and what are its types in practice settings. So first of all, as we all know that a human being is a social animal or social being, and his or her survival is impossible without group. Therefore, the group plays a very important role in the life of a human being. For example, we born into and develop in groups, we learn in groups, we work in groups, we interact with our friends in groups also, in the form of group. So जब भी मतलब कोई भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है वो ग्रुप में पैदा होता है, डेवलप होता है, उसकी सोशलाइजेशन होती है, वो फैमिली एज अ ग्रुप की हम बात करते हैं. देन अगर उसकी कोई वो लर्निंग किसी भी तरह की है, क्लासरूम लर्निंग है, वो भी ग्रुप के फॉर्म में है. इसी तरह से जो हम ऑफिस से जहाँ भी आप काम कर रहे हो तो वो ग्रुप है, ग्रुप में ही काम कर रहे हैं, टीम वर्क है सारा ही. और हम जब फ्री होते हैं फ्रेंड से भी बात करते हैं, वो भी एक ग्रुप की तरह ही होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डेफिनेशन, हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि डेफिनेशन क्या है जो ग्रुप वर्क है उसकी. तो ग्रुप क्या की डेफिनेशन क्या है. तो ग्रुप की सबसे जो डेफिनेशन फ्रॉम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो इस तरह से है: अ ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज 2 or more humans that interact with one another, accept expectations and obligations as a member of group, as well as shares a common identity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, तो हम बात करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग हों, उनमें इंटरेक्शन होना सबसे ज़रूरी है कि उनमें इंटरेक्शन हो रही हो, और जब भी वो मिलें तो वो जब वो एक ग्रुप बनाएंगे तो उनकी उस ग्रुप से एक कॉमन आइडेंटिटी बन जाएगी, वो ग्रुप उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगा. तो ये एक डेफिनेशन है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ग्रुप वर्क की. देन हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. तो सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक है वो है इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. सो जब हम ग्रुप की बात करेंगे, इंडिविजुअल्स आर नॉट अ ग्रुप अनलेस दे आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. तो जब भी हम जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो इंटरेक्शन उनके बीच में, लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है. अगर उनमें इंटरेक्शन नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक ग्रुप फॉर्मुलेट हो गया है. फॉर एग्जांपल जब हम बात करें कि एक जो लोग हैं बस स्टैंड पे खड़े हैं आपस में बात नहीं कर रहे, तो वो क्या एक ग्रुप बन जाएगा? नहीं.
वो एक ग्रुप नहीं है। इसी तरह से अगर हम बस में एक सीट पे 4 लोग बैठे हुए, 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए और वो आपस में वो जानते भी नहीं है, वो आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो एक ग्रुप है? नहीं, वो एक ग्रुप नहीं है। जब तक उनमें इंटरेक्शन होना सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है एक ग्रुप का। इसके बाद सेकंड जो है करेक्टरिस्टिक वो है परसेप्शन ऑफ मेंबरशिप। अ ग्रुप मे बी डिफाइंड एज अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more persons who perceived themselves as belonging to the group. So belonging होना उस ग्रुप को, आपको लगे कि आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हो, तभी हम बोल सकते हैं कि वो एक ग्रुप है। थर्ड इज इंटरडिपेंडेंस। ग्रुप में भी डिफाइंड एज ए कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंस मीन कि देखिए जब ग्रुप बनता है तो उसमें डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स या मेंबर्स को एलोकेट किए जाते हैं। वो सब उन रोल्स को परफॉर्म करते हैं। इन सब रोल की वजह से ही हम गोल को जो है वो अचीव करते हैं। तो हर एक जो है हर एक की इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे। अगर हम ये सोचेंगे कि हम इंडिविजुअली सारे ग्रुप के गोल्स को फुलफिल कर लेंगे, वो कभी नहीं हो सकता है। तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप का। फोर्थ इज गोल्स। ग्रुप में भी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु ज्वाइन टुगेदर टू अचीव गोल। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है ग्रुप की वो गोल्स है कि किसी भी ग्रुप में जो है वो तभी बनेंगे जब हमें कोई गोल अचीव करना होगा। तो किसी भी ग्रुप को जब आप बनाते हो उसके कुछ गोल्स होते हैं, उसको हम अचीव करते हैं तभी, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप का। लास्ट वन, सबसे लास्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक वो है मोटिवेशन। इंडिविजुअल्स आर नॉट अ ग्रुप अनलेस दे आर मोटिवेटेड बाय सम पर्सनल रीजन टू बी ए पार्ट ऑफ ग्रुप। तो आपका कोई एक पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से आप उस ग्रुप को ज्वाइन करते हो, और जो पर्सनल रीजन है और ग्रुप को ज्वाइन करना है उसके बीच में एक मोटिवेशन आती है कि आप मोटिवेट होते हो उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ये सभी ग्रुप्स थे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट वन वाज इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, सेकंड वाज परसेप्शन ऑफ मेंबरशिप, थर्ड वन वाज इंटरडिपेंडेंस, फोर्थ वन वाज गोल्स एंड लास्ट वन वाज मोटिवेशन। देन हम टाइप्स की तरफ चलेंगे धीरे धीरे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। जब हम सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। सबसे पहला जो है हम बात करेंगे वो है वॉलंटरी ग्रुप्स। सच ग्रुप्स we join through our own choice and effort are called voluntary groups। तो वॉलंटरी से नाम से ही पता चल जाता है कि स्वेच्छा से, आप अपनी मर्जी से उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो। हम एक एग्जांपल ले लें कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको आप अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हो, आपको फोर्सफुली कोई ज्वाइन नहीं करवाता है, कोई आप ऑटोमेटिकली उसके मेंबर नहीं होते, आप अपनी मर्जी से, आपका मन करता है, आपकी चॉइस है, आप तब जाते हो, आप एफर्ट करते हो और उसका मेंबर बन जाते हो। तो वो एक वॉलंटरी ग्रुप है। इसके बाद सेकेंड टाइप जो इसी से रिलेट करता है वो है इनवॉलंटरी ग्रुप्स। द ग्रुप्स वी आर फोर्स्ड टू ज्वाइन और आर ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड एज मेंबर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स विदाउट चॉइस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी ग्रुप। तो हम जैसे कि डेफिनेशन से पता चल गया कि ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो या आप फोर्सफुली उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो, तो हम उनको इनवॉलंटरी ग्रुप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक किसी रिलीजियस ग्रुप की बात कर लें, मान लीजिए हम एक हिंदूज के ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली उसके मेंबर जो है वो बन जाते हो। अगर मुस्लिम ग्रुप की बात करें तो जो मुस्लिम होंगे वो ऑटोमेटिकली उस मुस्लिम ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। क्रिश्चियंस होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस जो क्रिश्चियंस का ग्रुप है उसके मेंबर बन जाएंगे। आपको आपने एफर्ट या चॉइस की आपको जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली उसके मेंबर बन गए। देन द थर्ड वन इज ओपन ग्रुप्स। ओपन जैसे नाम से ही हमें पता चल जाता है कि वो ओपन है, कोई भी उसकी मेंबरशिप ले सकता है, कोई भी उसको कभी भी छोड़ सकता है। तो ओपन ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स वेयर एनीवन बिकम अ मेंबर एज सर्टेन मेंबर्स लीव, न्यू मेंबर्स आर एडमिटेड एंड ग्रुप कंटिन्यूज। तो हम एक एक्टर्स के, अगर मान लीजिए हम एक एक्टर्स के ग्रुप की बात कर लेते हैं, किसी भी एक्टर के ग्रुप की बात कर लेते हैं कि उसका एक क्लब बना हुआ है मान लीजिए, या फैंस क्लब बना हुआ है एक्टर का किसी का, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर मान लीजिए 100 मेंबर्स उसमें हैं, तो उसमें अगर 10 छोड़ जाएंगे तो कोई 10 या 12 और उसमें ज्वाइन कर जाएंगे, तो वो ग्रुप जो है वो चलता रहता है। और उसमें मेंबरशिप के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन या किसी तरह की कुछ जरूरत नहीं है, वो ओपन है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट जो सेकेंड है वो है क्लोज्ड ग्रुप्स, जो फोर्थ टाइप है हमारा। क्लोज्ड ग्रुप्स टिपिकली हैव सम टाइम लिमिटेशंस with the group meetings for a predetermined number of sessions. Generally, members are expected to remain in a group until it ends and new members are not added.
तो जब हमने क्लोज बात ही हम क्लोज की कर रही, क्लोज ग्रुप की बात आ गई, क्लोज्ड है वो, हम उसमें ऐड नहीं कर, कोई भी ओपन की तरह उसमें कोई भी मेंबरशिप नहीं ले सकता है। उसके लिए कुछ आपके क्वालिफिकेशन या आपके करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसके बाद ही आपको उसका मेंबर बनाया जाएगा। और टाइम लिमिटेशन है कि आपको कुछ टाइम के लिए रहना पड़ेगा। कुछ ग्रुप्स में आपको एंड बिल्कुल जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाते हैं तब तक उसका मेंबर रहना पड़ता है। और कुछ जो ग्रुप्स हैं जो आपके क्लोज ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो मेंबरशिप है वो न्यू मेंबर्स को मेंबरशिप नहीं मिलती। जो एक बार मेंबर्स बन चुके हैं उसके बाद उसमें कोई न्यू मेंबर्स नहीं ऐड ऑन हो सकते हैं। तो ये हमारे 4 तरह के आगे, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ओपन, क्लोज्ड। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रुप। हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स जो है वो हम उनके जो हायरार्कीज या स्टेटस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स वो होंगे जहाँ पे एक स्टेटस के लोग ही सब जो उसके हैं वो मेंबर होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्टर्स के ग्रुप की बात कर लें तो उनका एक हायरार्की जो स्टेटस है वो एक जैसा है, सब डॉक्टर्स हैं, तो वो उस ग्रुप के मेंबर होंगे, हॉरिजॉन्टल है वो। इसी के रिलेशन में दूसरा जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं, वर्टिकल ग्रुप में जो हायरार्की वाइज जो है ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो उसमें डिफरेंट हायरार्की में डिफरेंट स्टेटस के लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात कर लें, अगर हम मान लीजिए हम एक हिंदू ग्रुप की बात कर लेते हैं या रिलीजियस ग्रुप की बात कर लेते हैं और उनका वो एक ग्रुप है, तो उसमें हर जगह हम क्लास वाइज बात करेंगे तो हायरार्की में हर तरह के क्लास के लोग हैं। उसमें अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास का लोग आदमी भी होंगे। इसी तरह से अगर आप एक किसी डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, जैसे इग्नू के ही किसी डिपार्टमेंट की बात कर लें, उसमें जब उनके रोल्स की हम हायरार्की देखते हैं तो उसमें जॉब्स में उसमें टीचर्स भी होंगे, देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी होगा, उसमें क्लास 4 जो होंगे वो भी होंगे। तो वो एक हायरार्की वाइज जो है ऊपर से नीचे तक वर्टिकली वो ग्रुप बना हुआ है, तो उसको हम वर्टिकल ग्रुप बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं सोशियोलॉजिकल और सोशल वर्क पर्सपेक्टिव से। एच कूले ने सबसे पहले जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स की बात की थी। कूले डिस्क्राइब्स प्राइमरी ग्रुप एज कलेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल characterized by intimate face-to-face associations and cooperation. A primary group is a group which members develop close personal, intimate and enduring relationship. ठीक है, तो ये हमारे जो है एच कूले ने डिफाइन किया था प्राइमरी ग्रुप को। उन्होंने 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। फर्स्ट इज जो आपका इंटरेक्शन है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है और पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास फैमिली है या जो नेबरहुड के ग्रुप्स होते हैं, वो इनके जो प्राइमरी ग्रुप है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ जो सेकेंड हमारे पास आ जाता है वो होता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप जो है थोड़ा सा इससे ऑपोजिट है। दोज ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन ऑन इनडायरेक्ट मीडिया। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रुप है वहाँ पे आपका फेस टू फेस रिलेशनशिप नहीं है, इंटरैक्शन नहीं है, थ्रू इनडायरेक्ट मीडिया के थ्रू आपका जो है इंटरैक्शन है। इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है यहाँ पे। और इसके जो अदर करेक्टरिस्टिक हैं उसमें एक है कि रिलेटिवली लार्ज होते हैं। जब हम प्राइमरी ग्रुप के अकॉर्डिंग से रिलेट करके हम इनकी बात करें तो ये थोड़े बड़े हैं और इनके जो स्टेटस है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे फैमिली परमानेंट है, तो ये मैक्सिमम ये ग्रुप्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप्स हैं ग्रुप्स के वो हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हम सब देखते ही हैं किस तरह के होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से होते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स वो होते हैं जहाँ पे जो एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें भी जो भी ग्रुप है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे एक इंडिविजुअल या मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसी भी मेंबर को टास्क देने की और ये चेक करने की कि वो टास्क को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो एक फॉर्मल ग्रुप है, वहाँ पे हायरार्कीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ द मेंबर्स और टैलेंट, किसी मेंबर का टैलेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो दी जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है जो टाइप्स ऑफ ग्रुप में बात करेंगे, ट्रीटमेंट ग्रुप्स एंड टास्क ग्रुप्स। देखिए जो ट्रीटमेंट और टास्क ग्रुप है सोशल वर्क पर्सपेक्टिव से ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट जो है वो ग्रुप इस तरह के ग्रुप्स हैं जिसमें जो प्रेफरेंस है वो गिवन दिया जाता है सोशो इकोनॉमिक नीड्स या प्रॉब्लम्स ऑफ दैट ग्रुप ओनली।
जो फोकस है हमारा वो उनके नीड्स को फुलफिल करने का, जो ग्रुप है उसी की नीड्स को फुलफिल करने का या उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको का सोल्यूशन करने का होता है उसी पर्टिकुलर ग्रुप की। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम टास्क ग्रुप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो फोकस है वो सोशो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ दैट ग्रुप नहीं होता है, या जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन उस ग्रुप की प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन नहीं करते हैं हम। हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो लार्जर सोसाइटी या कम्युनिटी लेवल का होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ट्रीटमेंट और टास्क ग्रुप में। तो ये तो थे हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास थे वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, ओपन क्लोज्ड, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी सेकेंडरी, इनफॉर्मल फॉर्मल, ट्रीटमेंट एंड टास्क ग्रुप्स। तो ये टाइप्स के बाद हम धीरे धीरे अब शिफ्ट करेंगे लॉजिस्टिक्स रिगार्डिंग द ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप जब बनता है तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स की भी ज़रूरत होती है। किस तरह के लॉजिस्टिक्स होंगे, जैसे उसका ग्रुप कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ग्रुप साइज़ कैसा होगा, उसकी मीटिंग्स कितने ड्यूरेशन की होंगी, किस फ्रीक्वेंसी में उनकी मीटिंग्स होंगी। तो ये सब लॉजिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे अब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ग्रुप कॉम्पोजिशन, कि ग्रुप की कॉम्पोजिशन किस तरह की होनी चाहिए। जब हम ग्रुप कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि उस ग्रुप के गोल्स किस तरह के हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस चीज़ के लिए वो काम कर रहा है, हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारा ग्रुप कॉम्पोजिशन बनता है। तो ग्रुप कॉम्पोजिशन जब हम ब्रॉडली बात करें तो दो तरह का होता है, होमोजीनियस ग्रुप्स और हेट्रोजीनियस ग्रुप्स। होमोजीनियस ग्रुप्स वैसे होंगे जहाँ पे एक तरह की ही पॉपुलेशन होगी, और हेट्रोजीनियस ग्रुप्स वो होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन जो है अलग अलग तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर के बेसिस पे अगर हम ग्रुप्स ले लें तो होमोजीनियस ग्रुप वो होगा जहाँ पे एक ही जेंडर के, जैसे मेल हैं तो मेल ही सभी मेल होंगे, और हेट्रोजीनियस वो होगा जहाँ पे हर एक कोई भी हो सकता है, उसमें मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ट्रांसजेंडर हो सकता है, कोई भी उसका मेंबर जो है वो बन सकता है। तो जैसे मैंने डिस्कस बताया अभी आपको कि ये जो है वो वेरी करता है कि हमारी कॉम्पोजिशन कैसी होगी आपके ऑब्जेक्टिव्स को लेके। जैसे अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन है किसी स्पेसिफिक नीड्स के साथ, तो हमारा जो ग्रुप बनेगा वो हमेशा होमोजीनियस ग्रुप होगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी ग्रुप को कोई डाइवर्स सेटिंग में एक्सपीरियंसेस देना चाहते तो हमारा ग्रुप जो है वो हमेशा हेट्रोजीनियस है। तो ये तो था ग्रुप कंपोजिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप साइज की। तो ग्रुप साइज के लिए हमेशा काफ़ी डिस्कशन होती रही है। देयर हैज़ बीन कंटेस्टिंग व्यूज रिगार्डिंग द डिजायरेबल साइज ऑफ द ग्रुप एंड द आंसर डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर्स। तो जो ग्रुप साइज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो है वो है द एज ऑफ द क्लाइंट, सेकेंड है द एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स, एंड द थर्ड वन इज द टाइप ऑफ द ग्रुप, एंड द लास्ट वन इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स टू बी एक्सप्लोर्ड। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमारा साइज ऑफ ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का, तो हम जब भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमारा ग्रुप हमेशा जो होगा वो छोटा होगा साइज में, 4 to 6 मेंबर्स का होना चाहिए। अगर इसके कंपैरेटिव हम बात कर लें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की या अडल्ट्स की बात करते हैं तो वो ग्रुप्स हो सकता है कि उनका साइज हम बड़ा रख लें, 10 to 15, 12, 15 रखेंगे तो वो चल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ दी मीटिंग्स, ये तो हो गया हमारे पास कि साइज कितना कितना होगा, अडल्ट्स के लिए कितना हो सकता है, स्टूडेंट्स के लिए कितना हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग्स। अनदर डिस्कशन इज रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ ग्रुप मीटिंग्स। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंक्लूडिंग हाउ ऑफन शुड अ ग्रुप मीट, कितने टाइम पीरियड के बाद कितने टाइम में वो मिलेगा, एंड सेकेंड इज फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ ग्रुप मीट, कितने टाइम पीरियड होगा उसमें, कितना टाइम की मीटिंग होगी। तो ये भी जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके जो ग्रुप कॉम्पोजिशन है, जो साइज़ है, जो आपके गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो ग्रुप हमेशा छोटा होगा। उसके नंबर ऑफ मीटिंग्स जो हैं, अगर हम एक वीक की बात कर लेते हैं उसमें 3-4 मीटिंग्स होंगी या ज़्यादा मीटिंग्स होंगी, और जो मीटिंग की ड्यूरेशन होगी वो छोटी होगी, ताकि हम ये देख सकें कि वो जो स्टूडेंट हैं वो उनका कंसंट्रेशन लेवल जितना रहेगा मीटिंग में, जब वो डाइवर्ट हो जाएगा तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो नियरली अबाउट 15 to 20 मिनट्स या 30 मिनट्स हम कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम अडल्ट्स की बात करते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रुप्स जो हैं वो बड़े होंगे,
ठीक है, 10 to 15 तक का ग्रुप हो सकता है। मीटिंग की ड्यूरेशंस की एक वीक में कितनी हो रही है, हम एक मीटिंग या दो मीटिंग्स कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स उनकी मीटिंग्स कम होंगी, बट जो ड्यूरेशन है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की ड्यूरेशन से ज़्यादा होंगी, कि आप 1 घंटे की मीटिंग कर सकते हैं, 2 घंटे की मीटिंग जो है वो हो सकती है। तो ये सब लॉजिस्टिक्स थे जो हम ध्यान में रखते हैं जब हम ग्रुप फॉर्म करते हैं, उनकी मीटिंग्स वगैरह करते हैं, ये सब ध्यान में रखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। तो डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट मॉडल्स दिए हैं। हम शुरू करेंगे टकमैन के मॉडल से। टकमैन हैव रिव्यूड ऑलमोस्ट 50 स्टडीज इन मिड 1960 एंड प्रपोज्ड अ न्यू मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। The model initially in 1965 had 4 stages, but later on in 1977 added one more stage, and thus today it includes 5 stages. इसके 5 stages जो हैं, फर्स्ट स्टेज जो है फॉर्मिंग स्टेज है, सेकेंड जो है वो स्टॉर्मिंग स्टेज है, थर्ड वन इज नॉर्मिंग स्टेज, फोर्थ वन इज परफॉर्मिंग स्टेज एंड फिफ्थ वन इज अडजर्निंग स्टेज। तो फॉर्मिंग स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है, where the individuals are collected and each member is preoccupied with issues of joining or inclusion। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हर एक मेंबर इसी में प्री ऑक्यूपाइड होता है कि उसने ज्वाइन करना है, उसको इंक्लूड किया जाए ग्रुप में, ये सब चलता रहता है। सेकंड, स्टॉर्मिंग स्टेज इज द पॉइंट एट विच मेंबर्स आर बिगिनिंग टू सीक इंडिविजुअल रोल्स और स्पेसिस एंड कन्फ्लिक्ट अराइजेज एज दे सर्च फॉर कंपेटिबल टास्क। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टॉर्मिंग स्टेज है, स्टॉर्मिंग नाम से पता चलता है, स्टॉर्मिंग। तो जो ये स्टेज है यहाँ पे होता ये है कि जो मेंबर्स, आपने एक बार ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो उसके बाद रोल्स को आप अपने कंपेटिबल जो आपके लिए रोल्स हैं आप उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, कौन सा रोल आप अच्छे से कर सकते हो। हर एक इंडिविजुअल इस तरह से रोल्स देख रहा है अपने लिए कि कौन सा उसके लिए कंपेटेबल है, सिंपल है। तो होता क्या है कि मेंबर्स में कन्फ्लिक्ट आने शुरू हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट आएंगे, डिस्कशंस होंगी, उसके बाद जो है वो रोल्स का एलोकेशन सब कुछ इस ही स्टेज में हो जाता है, स्टॉर्मिंग स्टेज में। द थर्ड स्टेज जिसको हम नॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं, देयर आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स और एक्सेप्टेड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इसमें क्या करते हैं हम कि आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन चुके हैं, अब हम वेज और क्या रूल्स होंगे, क्या रोल्स किस तरह के नॉर्म्स बनेंगी वो बनाई जाती हैं इसमें, कि आप किस तरह से जो हम रोल्स को जो है टारगेट करना है तो उसके लिए हमारे पास किस तरह के वेज होंगे, कैसे हम काम करेंगे, किस तरह के रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे मेंबर्स को। नेक्स्ट वन इज द परफॉर्मिंग स्टेज इज द फोर्थ स्टेज वेयर ग्रुप बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। उनका जो है एक्शन फेज आ जाता है, इसको हम एक्शन फेज भी बोलते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज कॉल्ड टर्मिनेशन, और जब आपके गोल एक टाइम पे आप सब गोल्स को अचीव कर लोगे उसके बाद जो है हम ग्रुप को धीरे धीरे टर्मिनेट कर देते हैं या सेपरेशन हो जाती है ग्रुप मेंबर्स की। तो ये तो था टकमैन की मॉडल। सेकंड हम बात करेंगे कर्ट लुईन की मॉडल। टकमैन में मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये जो है ये जो स्टेजेस उसने दी हैं ये ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं कि किस तरह से ग्रुप जो है वो डेवलप करेगा। सेकेंडली जब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्ट लुईन्स के मॉडल की। हिज मॉडल ऑफ इंडिविजुअल चेंज इज स्टेपिंग स्टोन फॉर मैनी पाइनियर्स who have contributed theoretically। तो देखिए टकमैन की जब हम बात कर रहे थे तो वो सोशल ग्रुप के डेवलपमेंट की बात कर रहा था, और जो कर्ट लुईन है वो बात करता है इंडिविजुअल में जो चेंजेस आएंगे ग्रुप में आने के साथ साथ जिस तरह के चेंजेस आएंगे उसकी बात करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। कर्ट लुईन्स मॉडल हैज 3 stages such as first one is unfreezing stage, second is change and third one is freezing stage। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है उसकी। द फर्स्ट स्टेज मेक्स एफर्ट्स टू रिमूव लेथार्जी एंड डिसमेंटल्स द एग्जिस्टिंग माइंडसेट। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या किया जाता है, जो इंडिविजुअल है उसके दिमाग में जो लेजीनेस, लेथार्जी जो माइंड है उसको चेंज करने की उस पर बात की जाती है, और जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट उसका पहले से बना हुआ है उसकी बात की जाती है। द सेकेंड स्टेज इज ट्रांजिशन फेज दैट ब्रिंग्स चेंज। सेकेंड स्टेज जो है वो ट्रांजिशन फेज है जहाँ और इस फेज में चेंजेस आते हैं, जो माइंडसेट है उसमें चेंजेस किया जाता है। इन द लास्ट स्टेज द न्यू माइंडसेट इज क्रिस्टलाइज्ड, नाउ द माइंडसेट इज क्लियर एंड इंडिविजुअल बिकम स्टेबल। तो जो आपके चेंजेस आए हैं सेकेंड फेज में उनको वो क्रिस्टलाइज होते हैं स्टेज पे आके, आपका माइंडसेट जो है जो भी इंडिविजुअल है उसका माइंडसेट क्लियर होता है और इंडिविजुअल जो है वो और स्टेबल होता जाता है। ठीक है, तो ये थे कर्ट लुईन का मॉडल था ये जो था।
लास्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोशल ग्रुप वर्क का मॉडल है जो दिया था पेपल एंड रोथमैन ने इन 1966, और इन्होंने 3 तरह के मॉडल्स की बात की है फर्दर, द सोशल गोल मॉडल फर्स्ट, द रेमिडियल मॉडल सेकंड, एंड द थर्ड इज द रेसिप्रोकल मॉडल। तो हम शुरू करेंगे सोशल गोल मॉडल से। तो इसका जो सेंट्रल फोकस होता है जो सोशल गोल मॉडल है वो होता है सोशल कॉन्शियसनेस पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। द सेंट्रल फोकस ऑफ दिस मॉडल इज ऑन सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हेल्प्स मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू वर्क ऑन सॉल्विंग सोशल इश्यूज एंड ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज फॉर ऑप्रेस्ड पॉपुलेशन। इसमें ज़्यादातर हम जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यूज़ जो वो किया जाता है इस मॉडल में। नेक्स्ट हम चलते हैं द रेमिडियल मॉडल। जब हम रेमिडियल मॉडल की बात करते हैं, दिस मॉडल डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल जो ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल है उनकी ट्रीटमेंट की बात करता है। इट टेंड्स टू बी क्लिनिकली ओरिएंटेड। ये जो मॉडल है थोड़ा सा क्लिनिकली ओरिएंटेड है। द मॉडल फोकसेस ऑन दोज हु हैव प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स। किसी को पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप में किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए वो काम करता है। द ग्रुप वर्कर इन दिस मॉडल इज व्यूड एज चेंज एजेंट। चेंज एजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। द ग्रुप वर्कर दूसरे में कहीं भी जब हम ग्रुप वर्क की बात करते हैं तो उनको हम ग्रुप वर्कर बोलते हैं, बट यहाँ पे वो उसका जो एक रोल है वो चेंज एजेंट का है। वो हम देखेंगे कि चेंज एजेंट क्या होता है जब हम रोल्स की बात करेंगे। द ग्रुप पार्टिसिपेंट्स ऑन द अदर हैंड, ग्रुप वर्कर तो हम यहाँ पे चेंज एजेंट बोल रहे हैं, और जो ग्रुप पार्टिसिपेंट है हेयर आर रिगार्डेड एज क्लाइंट्स रेदर देन मेंबर्स। उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं, मेंबर नहीं बोला जाएगा जब हम इस मॉडल की बात करेंगे। द रेमिडियल मॉडल इज वाइडली यूज्ड इन मेंटल हेल्थ सेंटर्स, करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स एंड इन मैनी अदर एजेंसीज। तो करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स में, मेंटल हेल्थ सेटिंग्स में जो है वो इस मॉडल का यूज किया जाता है। थर्ड वन इज आर रेसिप्रोकल मॉडल। The reciprocal model has been derived from the system theory and field theory. There is duality of attention in this model. Duality of attention का मतलब है कि dual type की attention है इस मॉडल में। That is, it serves बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जब हम फर्स्ट जो सोशल गोल मॉडल की जब हम बात कर रहे थे तो हम सोसाइटी की बात कर रहे थे, रेमिडियल मॉडल में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, पर जब हम इस जो रेसिप्रोकल मॉडल है जब इसकी बात करते हैं तो हमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की ही बात करनी है। इन अदर वर्ड्स, रेसिप्रोकल मॉडल फोकसेस ऑन द मेजर कंसर्न्स ऑफ बोथ सोशल गोल मॉडल एंड रेमिडियल मॉडल एट अ सेम टाइम। तो जो ये है रेसिप्रोकल मॉडल है वो सेम टाइम पे दोनों ही जो आपका रेमिडियल मॉडल है और सोशल गोल मॉडल है वो दोनों की ही बात करता है। तो इस तरह से हमने देखा डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो जो थ्योरिस्ट ने दिए हुए उनकी डिस्कशन हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पेपल एंड रोथमैन का है जो 1966 में आया था, और उसने 3 तरह से डिफाइन किया है, द सोशल गोल मॉडल, द रेमिडियल मॉडल एंड द रेसिप्रोकल मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो इसमें भी जो फेजेस की जब हम बात करते हैं वो भी डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट फेजेस दिए हैं। डिफरेंट थ्योरिस्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरप्रिटेशन हैज़ गिवन देयर ओन मॉडल्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। फर्स्ट जो है जो स्टेजेस हैं वो वेरी कर जाती हैं डिफरेंट थिंकर्स की, पर जो है वो नंबर जो है जैसे किसी की जो है जो वेरी मैक्सिमम जो है स्टेजेस वो 6 हैं और मिनिमम जो है वो 3 हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं वो वेरी करती हैं 3 to 6 तक। तो सबसे पहले हम बेल्स की बात करते हैं। जो बेल्स है उसका मॉडल स्टेजेस हैं, उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की है। फर्स्ट स्टेज इज ओरिएंटेशन स्टेज, सेकेंड स्टेज इज एवेल्युएशन स्टेज एंड थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग स्टेज। ठीक है, तो ये तो बेल्स का मॉडल है। सेकेंडली टकमैन का मॉडल है जो हमने अभी मॉडल्स में भी बात की है, उसने फेजेस में भी हम उन्हीं की बात करते हैं कि क्या क्या फेजेस आएंगे ग्रुप डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट इज फॉर्मिंग स्टेज, सेकेंड इज स्टॉर्मिंग स्टेज, थर्ड इज नॉर्मिंग स्टेज, फोर्थ इज परफॉर्मिंग स्टेज एंड फिफ्थ इज परफॉर्मिंग स्टेज। इसी तरह से ट्रैकर ने भी कुछ स्टेजेस दी हुई हैं ग्रुप डेवलपमेंट की। उसमें फर्स्ट जो है वो बिगनिंग स्टेज है, सेकंड जो है वो इमर्जेंस ऑफ ग्रुप फीलिंग्स है, थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड है, फोर्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, फिफ्थ जो है डीलिंग इन ग्रुप फीलिंग्स है। तो ये डिफरेंट थिंकर्स के डिफरेंट फेजेस हैं जिनकी इन्होंने बात की है। द वेरियस मॉडल डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव स्टेजेस इन ग्रुप डेवलपमेंट विच मे बी रेंज फ्रॉम 3 to
6 स्टेजेस, ये हमने पहले बात कर ली कि ये वेरी करते हैं 3 to 6 स्टेजेस तक। तो आज के इसके फर्दर जो डिटेल डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो करेंगे, नेक्स्ट सेशन में, जो कि कल होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।